پیارے بچوں، السلام علیکم۔ میں مسعود حسن ملک ڈسٹرکٹ گاندربل سے تعلق رکھتا ہوں۔ میں آج آپ کی خدمت میں 7ویں جماعت کی سائنس کتاب میں فہرستوے سبق ہیٹ پہ بات کرنے والا ہوں۔ پیارے بچوں، یعنی آج ہمارا ٹاپک رہے گا ہیٹ، سبجیکٹ جنرل سائنس، کلاس 7۔ پیارے بچوں، جب ہمیں سردی لگتی ہے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم پانی کی بوتل کا استعمال کرتے ہیں، ہم کانگڑی کا استعمال کرتے ہیں، یا ہم آگ کا استعمال کرتے ہیں، یا ہم بلاور کا استعمال کرتے ہیں۔ پیارے بچوں، یہ جو پانی کی بوتل ہے، یا یہ جو کانگڑی ہے، یا یہ جو آگ ہے، یا یہ جو بلاور ہے، جن سے ہم گرمی حاصل کرتے ہیں، اصل میں کیا ہوتا ہے؟ ان چیزوں سے ایک قسم کی توانائی نکلتی ہے جو ہم میں گرمی کا احساس پیدا کرتی ہے۔ اسی توانائی کو ہم بولتے ہیں ہیٹ۔ پیارے بچوں، اگر ہمیں ہیٹ کو سائنٹیفکلی ڈیفائن کرنا ہوگا تو ہم بولتے ہیں ہیٹ از اے فارم آف انرجی وچ پروڈیوسز ان اس دی سینسیشن آف وارمتھ۔ یعنی جو ہیٹ، حرارت ہے، یہ ایک قسم کی توانائی ہے جو ہم میں گرمی کا احساس پیدا کرتی ہے۔ پیارے بچوں، جب یہ گرمی ہم حاصل کرتے ہیں، چاہے پانی کی ایک بوتل سے، چاہے کانگڑی سے، چاہے آگ سے، یا چاہے یہ گرمی ہم حاصل کریں گے ایک بلاور سے، تو ہم ہمیشہ دیکھتے ہیں یہ جو گرمی ہے یہ ان گرم چیزوں سے نکلتی ہے اور پھر بہتی ہے۔ کہاں کی اور بہتی ہے؟ سرد چیزوں کی اور۔ تو لہذا معلوم ہوتا ہے کہ ہیٹ always flows from a body at higher temperature to a body at lower temperature۔ یعنی یہ جو حرارت ہے یہ ہمیشہ بہتی ہے ایک ایسی چیز سے جس کا درجہ حرارت زیادہ ہوتا ہے اس چیز کی اور جس کا درجہ حرارت کم ہوتا ہے۔ then can't we say، کیا پھر ہم نہیں بول سکتے ہیں کہ heat is a form of energy which flows from a body at high temperature to a body at low temperature۔ یعنی یہ حرارت اس قسم کی انرجی ہے جو ایک ایسی باڈی سے بہتی ہے جس کا درجہ حرارت زیادہ ہوتا ہے اس باڈی کی اور جس کا درجہ حرارت کم ہوتا ہے۔ پیارے بچوں، ہاٹ اینڈ کولڈ کی بات ہم اکثر بیشتر کرتے ہیں روزمرہ زندگی میں۔ ہم بولتے ہیں کوئی چیز ہاٹ ہے، کوئی چیز کولڈ ہے۔ مثلا ہم بولتے ہیں we often say tea is hot and ice is cold۔ ہم بولتے ہیں چائے گرم ہے and ice is cold، برف ٹھنڈی ہے۔ we often decide which object is hotter than the other by touching the object۔ پیارے بچوں، ہم اکثر بیشتر کیسے فیصلہ لیتے ہیں کہ کوئی چیز گرم ہے کہ سرد ہے؟ چھونے سے۔ لیکن پیارے بچوں، ایک چیز یاد رکھنا چاہیے کہ ہمیشہ چھونے سے ہم نہیں بول سکتے ہیں کہ چھونے سے ہم ڈیسائیڈ کر سکتے ہیں، فیصلہ لے سکتے ہیں کہ یہ چیز جو ہے یہ گرم ہے، فلانی چیز جو ہے یہ سرد ہے۔ اٹ شوڈ بی نوٹڈ، یاد رکھنا چاہیے دیٹ کہ وی کین ناٹ آلویز ریلے آن اور سینس آف ٹچ۔ ہم ہمیشہ سینس آف ٹچ کے ذریعے ڈیسائیڈ نہیں کر سکتے ہیں ہاؤ ہاٹ اور کولڈ این آبجیکٹ از، کہ کوئی جو چیز ہے وہ کتنی گرم ہے یا کتنی سرد ہے، یہ ہمیشہ ہم سینس آف ٹچ کے ذریعے ڈیسائیڈ نہیں کر سکتے ہیں۔ پیارے بچوں، اس چیز کو دیکھنے کے لیے کہ سینس آف ٹچ ہمیشہ کام نہیں کرتا ہے ہمیں، تو اس چیز کو دیکھنے کے لیے کہ کوئی چیز گرم ہے کہ ٹھنڈی ہے، اس چیز کو دیکھنے کے لیے ہم کیا کریں گے؟ ہم یہاں پہ ایک ایکٹیویٹی کریں گے۔ ایکٹیویٹی میں ہم کیا کریں گے؟ ہم لیں گے بیکر اے، بیکر بی اور بیکر سی۔ پیارے بچوں، بیکر اے میں ہم ڈالیں گے سرد پانی، بیکر بی میں ہم ڈالیں گے گرم پانی، بیکر سی میں ہم تھوڑا سا گرم پانی اور تھوڑا سا سرد پانی ڈالیں گے۔ پیارے بچوں، اس کے بعد ہم کیا کریں گے؟ ہم اپنا بایاں ہاتھ ڈالیں گے بیکر اے میں، دایاں ہاتھ ڈالیں گے بیکر بی میں، ٹھیک؟ اور
कुछ टाइम तक हम अपने ये हाथ इन 2 बीकर्स में रखेंगे। 2-3 मिनट बाद हम क्या करेंगे, हम अपने ये बाजू निकालेंगे फ्रॉम बीकर ए एंड बीकर बी। उसके बाद जल्दी जल्दी हम क्या करेंगे, हम अपने दोनों बाजू एक साथ डालेंगे बीकर सी में। तो हम क्या देखते हैं प्यारे बच्चों, हम देखते हैं कि जो हमारा बायां बाजू है इसको लगता है कि बीकर सी के अंदर जो पानी है वो गर्म है, लेकिन जो हमारा दायां बाजू है इसको लगता है कि पानी जो बीकर सी के अंदर है वो सर्द है। तो मीन्स एक बाजू हमें बोलता है बीकर सी के अंदर पानी जो है वो सर्द है, दूसरा बाजू हमें बोलता है इसी बीकर का पानी जो है वो गर्म है। तो मालूम हुआ कि सेंस ऑफ टच के ज़रिए हमेशा हम नहीं डिसाइड कर सकते हैं कि कौन चीज़ गर्म है और कौन चीज़ सर्द है। प्यारे बच्चों, हाउ कैन वी डिसाइड देन, तो फिर हम कैसे फैसला ले सकते हैं कि कौन चीज़ गर्म है और कौन चीज़ सर्द है। प्यारे बच्चों, द हॉटनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज मेजर्ड बाय इट्स टेम्परेचर। कोई चीज़ जो है वो कितनी गर्म है या कितनी सर्द है ये हम देखते हैं एक चीज़ के ज़रिए। उस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, उस चीज़ को हम बोलते हैं टेम्परेचर यानी दर्जा हरारत। अब टेम्परेचर क्या है? टेम्परेचर इज़ अ मेजर ऑफ डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट। यानी टेम्परेचर दर्जा हरारत जो है ये हमें किसका मेजरमेंट देता है, डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट। इससे हमें पता चलता है कोई जो चीज़ है इसमें कितनी ज़्यादा गर्मी है या कितनी ज़्यादा सर्दी है। सो टेम्परेचर ऑफ एन ऑब्जेक्ट टेल्स अस हाउ हॉट और हाउ कोल्ड एन ऑब्जेक्ट इज। प्यारे बच्चों, क्या आपको पता है कि ये जो टेम्परेचर होता है किसी भी चीज़ का, ये हम कैसे नाप सकते हैं? प्यारे बच्चों, अगर आपको याद होगा जब हमें फीवर होता है हम डॉक्टर के पास जाते हैं। डॉक्टर क्या करता है, वो हमारे मुंह में एक इंस्ट्रूमेंट डालता है। उस इंस्ट्रूमेंट के ज़रिए हमें हमारा जो डॉक्टर है वो हमारी बॉडी का दर्जा हरारत नापता है। उस इंस्ट्रूमेंट को हम क्या बोलते हैं, उस इंस्ट्रूमेंट को हम बोलते हैं थर्मोमीटर। तो मालूम हुआ कि थर्मोमीटर ही वो चीज़ है जिससे हम एक बॉडी का टेम्परेचर मेजर करते हैं। थर्मोमीटर। तो चलो प्यारे बच्चों, अब थर्मोमीटर के बारे में थोड़ी सी नॉलेज हासिल करते हैं। टेम्परेचर इज मेजर्ड बाय डिवाइस कॉल्ड थर्मोमीटर। जैसे कि मैंने पहले ही बोला आपको कि टेम्परेचर दर्जा हरारत हम नापते हैं एक डिवाइस से, उस डिवाइस को हम बोलते हैं थर्मोमीटर। टेम्परेचर इज मेजर्ड इन डिग्री सेल्सियस। दर्जा हरारत हम मेजर करते किस यूनिट में, डिग्री सेल्सियस में। प्यारे बच्चों, all measuring thermometer use a substance which expands or contracts with the variation in temperature। सारे जो थर्मोमीटर्स होते हैं इनके अंदर एक मादा इस्तेमाल हो जाता है जो फैलता है या जो सिकुड़ता है विद वेरिएशन इन टेम्परेचर। जब भी टेम्परेचर यानी दर्जा हरारत में वेरिएशन तब्दीली आती है, दिस सब्सटेंस चेंजेस इट्स वॉल्यूम विद द चेंजिंग टेम्परेचर। ये जो चीज़ है ये अपना जो वॉल्यूम है वो चेंज करता है विद द चेंजिंग इन टेम्परेचर, जो ही इसका दर्जा हरारत तब्दील हो जाता है। Thus, this substance can expand with rise in temperature। लिहाजा हम बोलेंगे ये जो चीज़ है ये फैल जाती है with the rise in temperature, जो ही इसका दर्जा हरारत बढ़ जाता है। and contract, और ये जो चीज़ है ये सिकुड़ती है with the drop in temperature, जो ही दर्जा हरारत कम हो जाता है। The substance usually used in thermometers is either mercury or अल्कोहल। प्यारे बच्चों, जो हमारे थर्मोमीटर्स होते हैं इनमें जो हम ये चीज़ इस्तेमाल करते हैं या तो मरकरी होता है या तो अल्कोहल होता है। प्यारे बच्चों, अब हम देखेंगे क्लिनिकल थर्मोमीटर किसे हम बोलते हैं। प्यारे बच्चों, द थर्मोमीटर दैट मेजर्स द टेम्परेचर ऑफ आवर बॉडी इज कॉल्ड क्लिनिकल थर्मोमीटर। प्यारे बच्चों, वो वाला थर्मोमीटर जो हम इस्तेमाल करते हैं अपने जिस्म का दर्जा हरारत नापने के लिए,
उस थर्मोमीटर को हम बोलते हैं क्लिनिकल थर्मोमीटर। जैसे कि आप तस्वीर पे भी देख सकते हो, यही वो थर्मोमीटर है जो हमारा डॉक्टर इस्तेमाल करता है जब उसको हमारी बॉडी का टेम्परेचर मेजर करना होता है। तो मालूम हुआ जो हमारा डॉक्टर हमारी बॉडी का टेम्परेचर नापने के लिए थर्मोमीटर यूज़ करता है, वो कौन सा थर्मोमीटर होता है? फिर क्लिनिकल थर्मोमीटर। प्यारे बच्चों, याद रखना चाहिए, a clinical thermometer has a long narrow glass tube having a bulb at one end containing mercury। यानी जो एक क्लिनिकल थर्मोमीटर होता है, इसमें एक लंबा सा तंग गिलास ट्यूब होता है जिसके एक एंड पे एक बल्ब होती है, जिस बल्ब के अंदर हम रखते हैं मरकरी। It has a scale called Celsius scale marked in degree Celsius। ये जो क्लिनिकल थर्मोमीटर होता है, इस पे एक स्केल भी लगी होती है, जैसे कि आप नीचे तस्वीर पे देख भी सकते हो। और ये जो स्केल है, इस स्केल को हम बोलते हैं सेल्सियस स्केल। और ये सेल्सियस स्केल हमने इसकी निशानदेही की होती है इन डिग्री सेल्सियस। प्यारे बच्चों, a clinical thermometer reads temperature from 35 डिग्री सेल्सियस टू 42 डिग्री सेल्सियस। जो एक क्लिनिकल थर्मोमीटर होता है, ये कहाँ से कहाँ तक टेम्परेचर मेजर करता है? 35 डिग्री सेल्सियस टू 42 डिग्री सेल्सियस। प्यारे बच्चों, याद रखना चाहिए, the clinical thermometer has a small kink or constriction near the bulb to prevent the mercury level from falling down। प्यारे बच्चों, ताकि ये जो थर्मोमीटर हमारा है, इसमें जो मरकरी है, ताकि इसकी जो लेवल है वो नीचे ना जाए, इसके लिए हमने थर्मोमीटर में एक कंस्ट्रक्शन रखी होती है। सो इट शुड बी क्लियर कि जो कंस्ट्रक्शन का काम ये होता है ताकि जो मरकरी लेवल है वो नीचे ना जाए। प्यारे बच्चों, जब हमने ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर मेजर किया तो हमने देखा कि जो ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर होता है दैट इज 37 डिग्रीज। सो लिहाजा हम बोलेंगे द नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी इज 37 डिग्री सेल्सियस। प्यारे बच्चों, अब हम देखेंगे कि हम क्लिनिकल थर्मोमीटर का जब इस्तेमाल करना होता है, कैसे हम इसका इस्तेमाल करते हैं, जिसको हम बोलेंगे रीडिंग अ क्लिनिकल थर्मोमीटर। प्यारे बच्चों, याद रखना चाहिए, जब भी आपको क्लिनिकल थर्मोमीटर यूज़ करना होगा तो पहले आपको क्या करना है? वॉश द थर्मोमीटर विथ एन एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन। सबसे पहले थर्मोमीटर को धोना होता है एक एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन के ज़रिए, ताकि अगर इस पे जरासीम होंगे वो मर जाए। इसके बाद आपको क्या करना है? होल्ड इट फर्मली, फिर आपको इसे मजबूती से पकड़ना है एंड गिव इट फ्यू जर्क्स, और फिर इसको कुछ जर्क्स देने हैं टू ब्रिंग द लेवल ऑफ मरकरी बिलो 35 डिग्री सेल्सियस, ताकि जो इसमें मरकरी लेवल है वो 35 डिग्री से नीचे चली जाए। देन उसके बाद प्लेस द बल्ब ऑफ द थर्मोमीटर अंडर योर टंग। फिर ये जो थर्मोमीटर की जो बल्ब है वो आपको रखनी है कहाँ पे? अपनी जुबान के नीचे, मुंह में। फिर उसके बाद कुछ टाइम तक वहीं पे रखना है। आफ्टर 1 टाइम, 1 मिनट के बाद या 2 मिनट के बाद, टेक आउट द थर्मोमीटर। ये जो थर्मोमीटर है ये आप अपने मुंह से बाहर निकालो एंड नोट द रीडिंग, और आप देखो कि रीडिंग जो है वो क्या दिखा रहा है ये उस टाइम। तो जो जितने भी उस टाइम वो रीडिंग दिखाएगा, दिस विल बी योर बॉडी टेम्परेचर, वही आपकी बॉडी का टेम्परेचर होगा। लेबोरेटरी थर्मोमीटर। प्यारे बच्चों, क्या आपको पता है ये जो क्लिनिकल थर्मोमीटर है, क्लिनिकल थर्मोमीटर के अलावा हम एक और थर्मोमीटर इस्तेमाल करते हैं जो हम अक्सर बेशतर साइंस लैब्स में देखते हैं। उस थर्मोमीटर को हम क्या बोलते हैं? उस थर्मोमीटर को हम बोलते हैं लेबोरेटरी थर्मोमीटर। तो चलो प्यारे बच्चों, देखते हैं ये जो लेबोरेटरी थर्मोमीटर है ये कैसा होता है, इसकी बनावट कैसी होती है। प्यारे बच्चों, अ लेबोरेटरी थर्मोमीटर हैज़ अ लॉन्ग नैरो ग्लास ट्यूब। जो एक लेबोरेटरी थर्मोमीटर होता है इसमें भी एक लंबा सा नैरो गिलास ट्यूब होता है। इट हैज़ अ बल्ब एट वन एंड कंटेनिंग मरकरी। इसमें भी एक एंड पे एक बल्ब होती है जिसमें हमने क्या रखा होता है? मरकरी।
इट हैज़ अ स्केल मार्क्ड इन डिग्री सेल्सियस, और इसमें भी हमने एक स्केल बनाई होती है जिसको हमने मार्क किया होता है इन डिग्री सेल्सियस। प्यारे बच्चों, याद रखना चाहिए, द रेंज ऑफ द लेबोरेटरी थर्मोमीटर इज जनरली फ्रॉम -10 डिग्री सेल्सियस टू 110 डिग्री सेल्सियस। जो एक लेबोरेटरी थर्मोमीटर होता है ये हमें टेम्परेचर कहाँ से कहाँ तक मेजर करता है, -10 डिग्री सेल्सियस से लेके 110 डिग्री सेल्सियस तक। प्यारे बच्चों, अब हम देखेंगे ये जो लेबोरेटरी थर्मोमीटर है इसका हम कैसे इस्तेमाल करते हैं, जिसको हम बोलेंगे मेजरिंग टेम्परेचर विथ अ लेबोरेटरी थर्मोमीटर। प्यारे बच्चों, जैसे कि हमने तस्वीर पे भी दिखाया है कि हम कैसे लेबोरेटरी थर्मोमीटर का इस्तेमाल कर सकते हैं, तो इस एक्टिविटी में हम क्या करेंगे, हम इस एक्टिविटी में इस लेबोरेटरी थर्मोमीटर के ज़रिए हम मेजर करेंगे दर्जे हरारत किसका, पानी का। तो एक्टिविटी आपको कैसे करनी है, ऐसे आपको एक्टिविटी करनी है। टेक सम टैप वाटर इन अ बीकर, कुछ पानी हमें लेना है नल से, किसके अंदर, एक बीकर के अंदर। उसके बाद क्या करना है, डिप द थर्मोमीटर इन द वाटर। अब इसके बाद थर्मोमीटर जो है ये हमें डिप करना है किस में, इस पानी में, सो दैट ताकि द बल्ब ऑफ द थर्मोमीटर, जो इस थर्मोमीटर की बल्ब है, डज नॉट टच, ये टच नहीं करना चाहिए द बॉटम और द साइड्स ऑफ द बीकर। ये ना तो बॉटम के साथ टच करना चाहिए और ना तो ये साइड्स के साथ टच करना चाहिए, बल्कि ये जो थर्मोमीटर की जो बल्ब है ये बिल्कुल पानी के अंदर ही रहनी चाहिए। होल्ड द थर्मोमीटर वर्टिकली, जैसे कि हमने दिखाया है ये जो थर्मोमीटर है इसको पकड़ना है हमें कैसे, वर्टिकली हम इसको पकड़ना है। हम इसको हाथ के जरिए भी पकड़ सकते हैं या हम इसको किसी स्टैंड के जरिए भी पकड़ सकते हैं वर्टिकली। इसके बाद आप क्या देखोगे, द मर्करी लेवल राइजेस। प्यारे बच्चों, हम देखेंगे जो ही हम ये थर्मोमीटर इस पानी के अंदर डालेंगे तो ये जो मर्करी इस थर्मोमीटर के अंदर है ये फैल जाएगा और ऐसे क्या हो जाएगा, ये जो मर्करी की जो लेवल है इस थर्मोमीटर में बढ़ जाएगी। तो आपको क्या करना है, वेट till the level of the mercury become steady। आपको वेट करना है बराबर तब तक जब तक कि ये जो मर्करी की लेवल जो है ये रुक जाए। फिर आपको क्या करना है, नोट द लेवल ऑफ मर्करी। फिर जब ये मर्करी के लेवल रुक जाए तो आपको क्या करना है, आपको नोट करना है कि ये जो मर्करी है ये किस रीडिंग पे इसने स्टे किया, वो रीडिंग आपको देखनी है। और वही रीडिंग आपको क्या देगी, दिस विल गिव यू द टेम्परेचर ऑफ वाटर। ये हमें क्या देगा, यही रीडिंग हमें देगी टेम्परेचर यानी दर्जे हरारत किसका, पानी का। तो प्यारे बच्चों, ऐसे हमने देखा कि ये जो लेबोरेटरी थर्मोमीटर है ये हम कैसे इस्तेमाल करते हैं साइंस लैब्स में, अगर हमें इसके ज़रिए कहीं पे भी किसी भी लिक्विड का टेम्परेचर देखना होगा। तो प्यारे बच्चों, हमने आज पढ़ा हीट के बारे में, हमने आज पढ़ा टेम्परेचर के बारे में, हमने आज पढ़ा क्लिनिकल थर्मोमीटर किसे हम बोलते हैं, हमने आज पढ़ा लेबोरेटरी थर्मोमीटर किसे बोलते हैं। प्यारे बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने ये सारे कंसेप्ट अच्छे से समझे होंगे। थैंक यू बेटा।